Good morning, students. How are you? After a long time, we are here. So, without delay, we are going to start our new chapter more on HTML. As you see that on your whiteboard, ठीक है. तो आज हम अपना एक्सेल के HTML के बारे में पढ़ेंगे. तो HTML में लास्ट क्लास में हमने जाना था कि HTML क्या होते हैं, उसमें लिंक, वी लिंक, डी लिंक, इन सभी के बारे में जाना था. आज हम लोग उस HTML के बारे में और जानेंगे. तो चलिए आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं. More on HTML. In the previous chapter, you have learned about interesting list and image in web page. Your knowledge of HTML is incompleted without learning about hyperlink, table and frame. The table help you to organize data in a structured manner in a web page, whereas hyperlink enable you to content different web page. In the chapter, you will learn about creating table, frame and hyperlink in HTML. So now creating hyperlinks. So how can we create hyperlink? While surfing the internet, you come across several text in starting or image which when click open a different web page. This string or image are called hyperlink. Hyperlink in correct the web page over the World Wide Web. So we are going to start anchor a tag. The anchor a tag is used to create hyperlink in web page. It is a container tag. Any text in image enclosed within a anchor open and close tag is displayed as a hyperlink. So you can see that table 3.1 insert some of the important attribute of the a tag. So here is a attribute href. This attribute indicate the destination of the link name. The attribute is for link section on the same web page. It indicate the name of the section within a web page. So हम लोगों ने देखा अपने प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने HTML के बारे में पढ़ा था. वहां पर हम लोगों ने इमेज को इंक्लूड करना जाना था. अब हम यहाँ पर अपने पेज में हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो जानेंगे. इट मीन कि एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक कराना वो हाइपरलिंक होता है. तो ये हम लोग जानेंगे. सो हाउ कैन वी क्रिएट गोइंग टू हाइपरलिंक. तो कैसे हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे. इसके लिए एक एंकर टैग होता है जिसे हम लोग ए टैग बोलते हैं. इस टैग का यूज हम लोग हमेशा ऑन और ऑफ से करते हैं. ऑन इट मीन कि जहां पर हम लोग स्लैश यूज नहीं करेंगे वो हमारा ऑन होगा, और जैसे हमने स्लैश यूज कर लिया ए टैग के पहले वो हमारा ऑफ टैग होता है. तो इसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि कैसे अपने इस टैग को यूज करते हैं. अब हम आते हैं टाइप ऑफ लिंकिंग HTML. अब कितने तरह के लिंक्स टाइप होते हैं इनको हम लोग जानते हैं. तो आइए हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिंकिंग इन HTML. So there are three type of linking in HTML. They are external link, internal link and email link. It means three types. So first one is external link. So what is internal link? External link. The external link involve connecting two different web pages. When you click a hyperlink, a new web page to which the hyperlink is linked get display in the browser window. You can link page with in the same directory or to any other page over the internet. So you can see that table 3.2 illustrates some of the example of external links. So here is a some of examples is there. So the following HTML code illustrates the use of a tag in the first .html to link the different web page. So here is just some steps are there. A href is equal to inverted comma double inverted comma second .html double inverted comma close. So click on open second file. So now a href is equal to double inverted comma http semicolon double slash www.google.com. So click to visit Google web page. A HTML. The output of the web page is showing like this. Now internal linking. Internal linking involve linking various sections of the same web page. This type of linking is useful when a web page is very long. Let's the user view to desired section of the web page. This helps the user to quickly jump to the information he/she is looking for. Example, go to
top of the page, link in a web page. In an example of internal linking. Internal linking is two-step. First one, use the name attribute of the A tag to give a name to the section that has to be linked. Example M, A name is equal to double inverted comma XYZ. You will be link here A. Second one is use the href attribute of the A tag to refer the name section processed by the hash symbols. Example href is equal to double inverted comma hash XYZ double inverted comma close. You will be taken the link section. So you can see that लोगों ने सीखा इट मीन कि तीन टाइप के होते हैं हमारे लिंकिंग फाइल। पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल और तीसरे होते हैं हमारे ईमेल। इट मीन तीन तरह के लिंकिंग होते हैं। पहला हम लोगों ने जाना है एक्सटर्नल लिंकिंग। तो एक्सटर्नल मीन्स होते हैं बाहरी, यानी कि बाहर से हम लोग उसको लिंक करते हैं। तो कैसे इसको लिंक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया था, अगर हमें उसको कोडिंग को करनी है तो हम लोग इसमें बहुत सारी ऐसी कोडिंग्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो पहला उसमें मैं आपको दिखा दूं, ऐसे हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे, ए लिखते हैं, उसके बाद href इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद हम लोग कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद .htm यूज करते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये हम लोग का होता है कि पेज को लिंक करने के लिए। अब हम इसमें देते हैं दूसरा जो होता है वो ब्रैकेट ए, इसके बाद हम लोग देते हैं href इजकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद http सेमीकोलन डबल स्लैश www.google.com और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। इट मीन कि ये हमारा होता है। और जैसे ही हम इसको रन कराते हैं तो हमारा एक वेब पेज खुल करके आता है। इट मीन कि गूगल का वेब पेज, और यहाँ पर आपको सर्च बार होता है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से अपने इस एक्सटर्नली को हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है इंटरनल। इंटरनल मीन्स अंदरूनी होता है। तो अब इसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि इंटरनल कैसे कमांड यूज करते हैं। तो इंटरनल कमांड यूज करने के लिए हम लोग इंटरनली, तो आपको यहाँ पर भी दो स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं कि सेम इज देयर होता है। तो अब हम यहाँ पर एक नाम ले लेते हैं, जैसा कि आपके बुक में भी बताया गया है। और जैसा कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो एग्जांपल में आपका होता है एम, इसके बाद हम लोग इसको ब्रैकेट ए बनाते हैं, इसके बाद नेम कोई दे देते हैं, अपना कोई भी नाम हम दे देंगे। नाम देने के बाद इक्वल साइन डबल इनोट, और यहाँ पर हैश टैग हम लोग यूज करते हैं। अब हैश टैग इसमें ये होता है कि हमारा उस वैल्यू को जानने के लिए होते हैं, ठीक है। तो हैश टैग के द्वारा हम लोग यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे XYZ देने के बाद, और फिर हम इसको डबल इनोट क्लोज और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज कर देते हैं। तो इसके द्वारा भी हम लोग अपने इंटरनल एक्सटेंड कोड जान सकते हैं, इंटरनल लिंक को हम लोग आसानी से जान सकते हैं। अब हमारे इंटरनली लिंक में क्या होता है, अब हम तीसरे रूप पर आते हैं अपने मीन की ईमेल लिंक। तो ईमेल लिंक क्या होता है उसके बारे में चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे। ईमेल लिंकिंग, लिंकिंग टू एन ईमेल एड्रेस। टू लिंक टेक्स्ट टू एन ईमेल एड्रेस, यू सी द mail to keyword before the email address in the href attribute of the A tag. For example, to link the send an email to the email address pansy.thomas@gmail.com, you can write the following HTML code. href is equal to double inverted comma mail to semicolon pansy.thomas@gmail.com and send an email. अभी हम लोगों ने जाना ईमेल लिंकिंग। अभी इसके पहले हम लोगों ने इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में जाना था। अब हमारा आता है ईमेल लिंकिंग। तो ईमेल लिंकिंग हमारे वो होते हैं जिसके द्वारा हम लोग एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करते हैं। इट मीन की बाय द ईमेल, इट मीन की हम लोग ईमेल के थ्रू करते हैं। तो कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना हुआ है। यहाँ पर href इक्वल टू डबल इनवर्ट कमा मेल टू सेमीकोलन यूज करते हैं। अब उस ईमेल आईडी का नाम हम डालेंगे और सेंड करेंगे उस एक ईमेल पर जो हमारा ईमेल आईडी होता है। अब हम यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, तो जिसके द्वारा हम लोग अपने एक फाइल को बाय द ईमेल हम लोग अटैच कर सकते हैं। एक तो इंटरनली कर सकते हैं, एक एक्सटर्नली करते हैं, और तीसरा जो हमारा होता है ईमेल के थ्रू करते हैं।
तो ईमेल के थ्रू भी हम लोग आसानी से अपने एक फाइल को लिंक कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो यही तक है और आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को बने रहने के लिए तब तक देखते रहिए मेरा, और फिर हम लोग आगे मिलेंगे और आगे जानेंगे कि हमारा आगे का क्या पोर्शन होता है, आगे हम लोग क्या पढ़ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।